Hello everyone, welcome back to Lawfront. This is Surya and welcome back to our free course for NLSAT 2027 and today we are at LR1. इंट्रोडक्टरी वीडियो और A1 की वीडियो में मैंने थोड़ा बहुत तो बता ही दिया था कि ये कोर्स कैसे चलता है बट इफ़ यू हैव नॉट वॉच द A1 और द इंट्रोडक्टरी वीडियो सो LR1 इज़ लीगल राइटिंग लीगल रीजनिंग राइटिंग उसका LR1। तो इसमें हम पार्ट बी लीगल आंसर राइटिंग के कुछ कोर फंडामेंटल्स को 6 लेक्चर्स के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। अगेन दीज लेक्चर्स आर नॉट एग्जॉस्टिव पर से। इनको इट्स नॉट लाइक इनको देखने के बाद यू विल लाइक immediately part B legal answer writing शुरू कर दिया आपने. It will not obviously function like that, but understand कि how these lectures are going to help you at the end of the day. So if you are someone who are completely at a beginner stage, you are in your final year of graduation, or you are like planning to go ahead and proceed with your NLSAT preparation, but you do not have a starting point. Right now you're hoarding materials, so on and so forth. You are not actually understanding कि what are the key basics जो मुझे पता हो उसके बाद मैं इससे improve करना शुरू करूँ. So this lecture series is for you. But understand these are not exhaustive. If you actually want to make the cutoff, which are generally very high for part B as well, this time 75 marks is somewhere around 50-55 marks were the highest scored in part B legal answer writing or part B compiled in compiled of NLSAT. उससे अगर ऐसे के 7-8 मार्क भी तुम निकाल दो 45 marks you need. That, my friends, believe is a very like in itself a very humongous task to achieve. So those things can only be achieved when you are doing 3 things. Number 1, understanding what are going to be asked from you and understanding what do you need to provide to them. पूछा क्या जा रहा है तुमसे through these questions. So understanding the key aspects of what do you need to write. Good percentage of that you will get through these lectures. But the second part, practicing एक्चुअल क्वालिटी क्वेश्चंस जैसे पूछे गए हैं, बिकॉज तुम्हारे जो सैम्पल पेपर हैं, तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, मिला जुला के 30 क्वेश्चन से ज़्यादा तुमको उनसे मिलने वाले हैं नहीं. अगेन एनएलसैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में निकालता नहीं है अपनी क्या चीज़ है, अपनी सारे पार्ट बी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. सैम्पल पेपर देख लो कि 10 क्वेश्चन तुमको मिलेंगे, बट यू नीड टू एटलीस्ट सॉल्व 100 पार्ट बी लीगल आंसर राइटिंग क्वेश्चन टू बी एट द स्टेज when you are very confident. Quality questions. And number 3, mentorship to get those questions actually reviewed, to see how could you have done better on those kind of questions and improve. सो ये जो कॉन्टिन्यूस चेन ऑफ इम्प्रूवमेंट है, इसके लिए 3 चीज़ें चाहिए. दिस बैच पहले एलिमेंट की कुछ चीज़ें आपको प्रोवाइड कर देंगी, बट इट विल माई सिंसियर रिक्वेस्ट टू यू, go ahead and look out for our Lawfront Elite 2027 batch for the complete package. For people who cannot right now, no issues. Continue with this. Practice. Keep practicing. It's not that it's completely impossible, but again, it will be a shit ton of harder for you that way. But let's proceed with this right now and see that what this entire lecture series, LR lecture series, entail for you. Today we are at LR1, lecture number 1 of the LR series, and we'll be talking about thinking like a lawyer. We'll be talking about what does part B legal answer writing want from you. We'll be seeing a few previous year and a few sample questions. We'll be working our way around it, and we'll be discussing the basics of part B legal answer writing. And in the course of the next 5 lectures, this schedule have already been provided to you. We will progressively enter into more advanced nuances and improve ourselves. So with that said, let's start the lecture. So in this lecture, we'll be learning about thinking like a lawyer without knowing any law. Because understand the prerequisite as per the official notification is, you need not know any statutes, you need not have any prior understanding of law, only you need to be a reasonable person who can apply the basic legal concepts and legal terminology, so on and so forth. So how do you write a legal answer that scores without even opening a law book? Let's work our way around it. So see, tax law, GST law, tax legislations, IT Act, कुछ नहीं आता तुमको. एक ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया गया है, पॉपकॉर्न shall be taxed at 5%. A newer law, पिछला वाला law says that popcorn shall be taxed at 5%. A newer law says that any packaged snacks whose primary design is to deliver a sweet taste by including sugar as a principal ingredient should be taxed as 15% as a confectionery. क्वेश्चन आ जाता है, a popcorn snack is 35% corn, 35% sugar, 15% salt and spice, and it is loved for its sweet glaze. Tax authority wants 15%, maker says 5% देगा. Who is liable? टैक्स कोड खोल के बैठोगे, जीएसटी कोड खोल के बैठोगे, देखोगे कौन से कैटेगरी में आता है ये? नहीं.
कॉमन सेंस का यूज करोगे, कॉमन सेंस, लॉ के रीजनिंग पे तुम फोकस करोगे। कुछ चीजें हैं, द लेटर ऑफ द लॉ, द इंटेंट ऑफ द लॉ, कि ये लॉ एक्चुअली लाया क्यों गया था। टैक्स लॉ का मोटिवेशंस आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, बट किस क्वेश्चन में टैक्स लॉ रिलेटेड मैट्रिक्स को तुमको लगाना है कि टैक्स लॉ के मोटिवेशंस ये होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स के मोटिवेशन ये होते हैं, उसके लिए यू नीड टू बी थॉरो विद वेरियस काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट आर देयर in this thing. In this free lecture series, 4 of our 6 lectures are focused on 4 different kinds of questions, 4 to 5 different kinds of questions, but there are around 12 to 13, समझ रहे हो ना, जो which are generally asked in NLSAT exam. So we need to be prepared for all of those kind of question to see कि हर different factual matrix में we need to have a reasoned idea कि ये जो law लाया जा रहा है, the idea behind having this kind of legislation is this, ठीक है। तो whether the particular new law is actually meeting the idea behind such kind of code, we need to evaluate that. ये सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। So notice at first instant most of the students will freeze that अरे मैंने तो टैक्स लॉ पढ़ा ही नहीं है, मुझे रियल रूल पता नहीं है, IT एक्ट का कौन सा सेक्शन कौन सा शेड्यूल लगता है पता ही नहीं है। बट क्वेश्चन फिर से पढ़ो, it never asked you to know the tax law, it gave you the law, there is a passage, it is asking something entirely, can you take a rule you were handed and reason with a defensible conclusion. फैक्ट्स पे खेलो, लीगल थिंकिंग पे खेलो, ठीक है। नो प्रायर नॉलेज इज रेस्पेक्टेड, ईच क्वेश्चन इज डिजाइन टू अलाउ, ये तो हम बात कर चुके हैं। सो होल एग्जाम में देर इज नो राइट आंसर, you could argue the snack is confectionery or argue the snack is popcorn and both can score full marks. When they say, the benefit is when they say that no prior legal knowledge is necessary, they will not be judging you on the actual word of the statute, they will be judging you corely, पूरा core में तुम्हारे arguments की tenacity के ऊपर, how well reasoned your arguments are. तो you need not focus on the correct answer, you should focus on well reasoned and well sounded arguments. Understand this is what they are asking out of you in part B legal answer writing of NLSAT exam. So it is not about knowing any law, it is what you are actually doing. You are doing what every lawyer does and what a judge does when they write a judgment. You take a rule, you take a set of facts and you build a bridge of reasons. रूल मिला है, फैक्ट्स मिले हैं, रूल और फैक्ट को अप्लाई करना है, वो एप्लीकेशन को, रूल के कैरेक्टराइजेशन को, ऑल ऑफ दोज थिंग्स यू नीड टू डू इन एन आंसर, ठीक है। ब्रिज के 6 प्लैंक्स हैं, एक के बाद एक पढ़ते जाएंगे। द 6 प्लैंक्स आर इशू, फैक्ट्स, नॉर्म, एप्लीकेशन, काउंटर, कंक्लूजन। एवरी लीगल आंसर राइटिंग के तुम्हें जो भी लेक्चर मिल जाएंगे इन अर्लियर लेक्चर्स एज वेल, यूट्यूब के लेक्चर्स में एटलीस्ट वही से कि आईरैक फॉलो करो। बट आईरैक एक्चुअली इन तरह के क्वेश्चंस के लिए कैसे फॉलो किया जाता है, व्हाट इज एक्चुअली द स्ट्रक्चर जिसको तुम्हें मेंटली तुम्हारा प्रेजेंट होना चाहिए, ताकि जब भी तुम क्वेश्चन पढ़ो तुम्हारे दिमाग में आ जाए कि ओके गाइस ये चीज़ें क्वेश्चन में आती हैं, दीज थिंग्स विल फिट इन दीज हेड्स, इनमें ये इस तरह का एनालिसिस होना चाहिए, फट से आंसर लिख दोगे तुम। एग्जाम में पहली बार क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन स्पेसिफिक थिंकिंग तब अगर शुरू करोगे, हो गया भाई, हो गया, 2 क्वेश्चन लिखोगे खत्म, दो विल बी नॉट दैट एक्यूरेट एज वेल, मार्जिन ऑफ एरर विल बी वेरी हाई एंड 2 क्वेश्चन में खत्म, वक्त ही नहीं होगा, ठीक है। तो उस तरह से सोचना शुरू करो। इशू आइडेंटिफाई करो, इशू क्या है। वी हैव वन लेक्चर वेयर वी टॉक अबाउट इशू आइडेंटिफिकेशन। लेट मी गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ दैट आई जनरली गिव सॉरी गाइस, स्मॉल एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ दैट आई जनरली गिव कि जब मुझे इशू फॉर्मेशन सुनाना होता है, समझाना होता है। राम एंड रवि आर 2 स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, राम एंड रवि वांट टू गो टू पुरी, कैन राम एंड रवि गो टू पुरी। क्वेश्चन ये है, इशू स्टूडेंट्स वही लिख देते हैं, कैन राम एंड रवि गो टू पुरी, फिर आर्ग्यूमेंट्स। अरे नहीं, इशूज आर क्वाड्रेल्स, इशूज आर स्टेप्स जिन्हें पूरा करना पड़ेगा, ऐसे फॉर्म करो। बीइंग 2 स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, do Ram and Ravi have the requisite permissions from their guardians to go to Puri? Do they have the resources requisite to go to Puri? पैसे चाहिए, परमिशन चाहिए, ये दोनों चीज़ें मीट हो गई तो हाँ भाई क्यों नहीं जा सकते राम एंड रवि पुरी में। इसमें और सारी चीज़ें आ जाती हैं डिपेंडिंग ऑन एडिशनल फैक्ट्स क्या दी गई हैं, वेदर कैसा है, वो कैसा है। बट अगेन वेदर परमिशन का ही एलिमेंट है, वेदर खराब होगा तो घर से परमिशन नहीं मिलेगी, तो वो उसी में इंक्लूड हो जाता है मोर और लेस क्रिएटिव इंसेंटिवाइजेशन से। बट
देखते रहो. These are all the different kinds of things. Come up with more ideas and so on and so forth. Facts. ये गलती आप कर देते हैं कि आपको लगता है कि फैक्ट्स को रीस्टेट करना है. कभी रीस्टेट नहीं करना है, अप्लाई करना है फैक्ट्स को जो इसके साथ आपको रीड करने हैं. ये जो नॉर्म है ना, इस नॉर्म एप्लीकेशन का फंडा थोड़ा ये क्रिटिकल है भाई. लेक्चर नंबर 2 में हम स्पेसिफिकली ये वाइज डिस्कस करेंगे. बट जब हम स्पेसिफिक रूल को डिस्कस करते हैं, हम उस रूल को पहले कैरेक्टराइज करते हैं. हम बोलते हैं कि इस रूल का इंटेंट ये है, ये रूल ऐसे इंटरप्रेट होना चाहिए. इंटरप्रिटेशन के बाद हम अपना फेवरेबल इंटरप्रिटेशन अप्लाई करते हैं. फिर हम लेते हैं काउंटर फैक्चुअल कि ठीक है, अपना फेवरेबल इंटरप्रिटेशन अप्लाई करने से हमको लॉसेस क्या है और अनफेवरेबल इंटरप्रिटेशन अप्लाई करने से हमको बेनिफिट्स क्या हो रहे हैं. दोनों को वे कर दो, खत्म, कंक्लूजन हो गया. सो चेकलिस्ट नहीं है, बट इट इज अ वे ऑफ थिंकिंग. एज आई टोल्ड, जस्ट मेंशन टू यू, दिस इज अ वे ऑफ थिंकिंग. बिकॉज फैक्ट्स ये इंटरचेंजेबली आगे पीछे ये सब चीज़ें होती रहती हैं. जस्ट अ सेकेंड. यस, फैक्ट्स ये इंटरचेंजेबली ये सब चीज़ें आगे पीछे होती रहती हैं. अ वीक स्टूडेंट लिखेगा द इशू इज़ वेदर द कंपनी में पे टैक्स. मैंने बोल दिया इशू वैसे फ्रेम नहीं करने. इशू कैसे फ्रेम करना है? द इशू इज़ वेदर शुगर पॉप डिलाइट, पॉपकॉर्न का ब्रांड, फॉल्स विद इन द न्यूज लॉ डिफिनेशन ऑफ अ कन्फेक्शनरी. क्या सब इशूज फ्रेम किए इसने? वेदर प्राइमरी डिजाइन स्वीट टेस्ट डिलीवर करना है और शुगर एक प्रिंसिपल इंग्रेडिएंट है क्या. ये दोनों चीज़ें मीट हो गई तो हो गया आंसर का सोल्यूशन. ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर तो ये दोनों चीजें मीट करने के बाद ही मिलेगा ना भाई. तो दीज आर द इश्यूज. सो प्लैंक्स 2 and 3, फैक्ट्स क्या मैटर करते हैं, रूल क्या मैटर करते हैं. रेलेवेंट फैक्ट्स देखो कौन से रेलेवेंट फैक्ट्स हैं. बायर्स लव इट, नॉस्टैल्जिक पैकेजिंग. भाई वो इमोशनली इंट्यूटिव चीजें मत लिखा करो. सिंपल देखो, 35% शुगर है, लार्जेस्ट इंग्रेडिएंट कौन के साथ 35% शुगर है, तो इट इज नॉट वन प्रिंसिपल इंग्रेडिएंट. ठीक है, बायर्स ऑल द चूज इट फॉर अ स्वीटनेस, बट बेस तो सिर्फ पॉपकॉर्न ही है. ये अगर एक तरीके से तुमको अगर आर्ग्यू करना है. बट अगर बायर्स चूज कर रहे हैं स्वीटनेस के लिए, तो तुम बोलोगे कि डिपेंड नहीं करता कि क्या है, बिकॉज बायर्स एट द एंड ऑफ द डे टैक्स पे कर रहे हैं ना. डिपेंड नहीं करता कि क्या है बेस इंग्रेडिएंट. स्वीटनेस के लिए चूज कर रहे हैं प्रिंसिपल इंग्रेडिएंट अलॉन्ग विद कॉर्न, अगर शुगर है तो टैक्स पे करना पड़ेगा. कैरेक्टराइज करो भाई, कोई भी आर्ग्यूमेंट चलेगा, बट शुड बी वेल रीजन. थोड़ा लॉजिक, एलिमेंट ऑफ लॉजिक होना चाहिए. सो ये प्लैंक 4 इज वेयर द मार्क्स आर एप्लीकेशन. 15% कन्फेक्शनरी के अगर तुमको आर्ग्यूमेंट लिखना है, प्राइमरी ड्यू टू इट्स वीकनेस, प्राइमरी डिजाइड ये है, वो सब आर्ग्यूमेंट करोगे. अगर पॉपकॉर्न के लिए करना है तो शुगर इज टायर्ड, इट इज़ नॉट सिंगल डोमिनेंट, ये सब आर्ग्यूमेंट्स करोगे. बता चुके हैं, बात कर चुके हैं. सो अदर साइड को कैसे तुम टेक डाउन करोगे, तो अदर साइड से कैसे आएंगे, कोई भी साइड से लो. यू मस्ट हैव ऑल, दोनों साइड से आर्ग्यू करना. अंडरस्टैंड, पहले लाइन से यू नीड टू सेट आउट योर स्टैंड कि आई विल बी आर्ग्यूइंग फ्रॉम दिस साइड, बट यू नीड टू, आई विल बी, दिस इज माई स्टांस, मैं इसके साथ अग्री करता हूँ. बट आर्ग्यू तुम्हें दोनों साइड से करना है. तुमको ये भी दिखाना है कि तुम दूसरे साइड के आर्ग्यूमेंट भी सोच पा रहे हो और उनको कैसे रिफ्यूट कर रहे हो. बिटवीन द टू स्टैच्यूट्स की हायर टैक्स अगर ये है तो प्राइमरी डिजाइन, सॉरी, ऑन बैलेंस बिटवीन द स्टैच्यूट कीज द हायर टैक्स टू प्राइमरी डिजाइन एंड पर्पस. Facts show buyer choose sugar puffs chiefly for sweetness at 35%. So it is more likely to be a confectionery because it is taxable from the buyer's side. Contrary reading is arguable, but the purpose-based test tilts against the maker. Purpose-based test अगर तुम create करोगे तो ये तुम्हारा काउंटर आर्ग्यूमेंट है. इसको फिर से बैलेंस कर लेना. ठीक है, तो तुमने किया क्या एंड ऑफ द डे, एक टैक्स क्वेश्चन को तुमने ऐसे आंसर किया विदाउट इवन नोइंग अ सिंगल लाइन ऑफ रियल टैक्स लॉ. दिस इज हाउ यू गाइस मस्ट डू दीज थिंग्स. जस्ट अ सेकेंड. यस, इसके साथ एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एंड दैट विल बी आवर आइडिएशन का एंड फॉर दिस सेशन. अ डेटा प्रोटेक्शन लॉ मेक्स अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर ऑफ पर्सनल डेटा अ ब्रीच, but only if it results from negligence or failure to take reasonable safeguards. Bank posts a promotional photo online. In the background, by accident, a customer's daughter is holding a folder of his account details, unreadable except with special doom technology. ठीक है, easy, समझ आ गया, फिर से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, पॉज करके पढ़ सकते हैं. Daughter sues the bank, bank says she is not even its customer. ठीक है, बैंक says it's not even its customer. आगे जाते हैं. Here is the real answer जो स्टूडेंट जाके लिख देंगे.
Under Section 5 of Data Protection Act, any bank that leaks financial data is fully liable, must pay compensation. Privacy is a fundamental right under Article 21. Bank clearly violated by putting her data online. Therefore, bank is guilty. She will win the case. Bank must always protect data. ये एक्चुअल आंसर है जो मैंने उठाया है एक स्टूडेंट के ये से. ठीक है, ये कॉन्फिडेंट लग रहा है. आर्टिकल 21 फेंक दिया, कुछ तो फेंक दिया. ये सेक्शन 5 इफ यू आर वंडरिंग, दिस इज एक्चुअली अ समरी. सॉरी, दिस इज एक्चुअली अ समरी ऑफ अ बिगर क्वेश्चन. तो उसके लिए आई हैव यूज्ड दिस स्मॉलर आंसर, ये स्मॉलर सेगमेंट. एक्चुअल क्वेश्चन में ये डेटा प्रोटेक्शन ये का सेक्शन 5 वगैरह सब कुछ था. ठीक है, कॉन्फिडेंट साउंड करता है भाई, बट ये पोर है. दिस इज नॉट एक्चुअली हाउ यू गो एंड राइट द आंसर. हाउ डू यू राइट इट? ठीक है, इन्वेंट्स लॉ का इशू नहीं है, ये तो सेक्शन बच्चे ने लिखा था. रियल इशू को स्किप कर देता है. द बैंक्स होल डिफेंस इज शी इज नॉट अ कस्टमर. A good answer must decide whether the law even covers her before asking about fault. ठीक है, आंसर तो फोकस ही नहीं करता बैंक के डिफेंस पे. ठीक है, क्लियरली वायलेटेड देयरफॉर गिल्टी. वर्डिक्ट है, आपको वर्डिक्ट नहीं मांगा गया है, वो लास्ट में दीजिएगा. एक ब्रिज ऑफ रीजन अभी दीजिए. ठीक है, तो बनाते हैं, आंसर बनाते हैं. फर्स्ट, अ थ्रेशोल्ड क्वेश्चन पूछा. डज द एक्ट प्रोसेस प्रोटेक्ट मिस्टर राव एट ऑल? Bank duty runs to personal data it handles. The data shown is a father's account details. So even if she is the right person to complain or is he, the issue must be resolved. Does not matter कि वो customer है या नहीं. Data leak किसका हुआ है? उनके पापा का. वो तो customer है ना. Only then the question of fault arose. ठीक है. Unreadable without specific zoom जो है, क्या reasonable safeguards लिए जा सकते हैं? Because they पढ़ा तो नहीं जा रहा है वहाँ से, unless specific zoom की टेक्नोलॉजी यूज हो. तो was this a reasonable safeguard taken by the bank? These are the questions that can be asked. So एक एक्चुअल आंसर कैसे लिखेगा? इशू पहले आइडेंटिफाई किया जा रहा है. देखो, issue is whether the bank is liable for disclosing sensitive data, which turns on two things. First, the scope. Data is the father's, so his privacy interest is primarily engaged. Daughter's standing is weak unless image discloses something about her as well. Second, liability arises only from negligence or failure of reasonable safeguards. Here the capture was accidental, which is negligent, and the details are ineligible without special technology, which suggests the ordinary standard of care was not breached. On balance, bank is not likely to be liable. Therefore, courts treat her mere extractability as enough. सिर्फ एक्सट्रैक्ट कर दो, वो सारी चीज़ें हटा दो, इट्स एनफ. बट स्ट्रांगली आर्ग्यू करना है, बोल सकते हो कि पर्सनल डेटा, प्राइवेट इंफॉर्मेशन, वेरी सेंसिटिव थिंग, ये सब कर सकते हो. तो इन सब का यूज करके ही आई हैव क्रिएटेड अनदर आंसर. सो यस गाइज, आई बिलीव दिस नाउ प्रोवाइड्स यू विद एनफ आइडिया कि हाउ डू यू नीड टू गो अहेड एंड राइट लीगल आंसर्स, अंडरस्टैंड कि क्या क्या चीज़ें रहनी चाहिए. With that said, this was our end of LR1. We will be coming up with more lectures in A series, LR series, and E series very soon. Stay tuned, and yes, keep studying, keep growing, and as I always say, aim to be.